کی تاریخ پر ریسرچ کے سلسلے میں رخ سندھی آپ سے مخاطب ہوں۔ آج اس پر بات ہوگی کہ انگریزوں کے ہاتھوں سندھ کو شکست کیوں ہوئی۔ مرسوں مرسوں سندھ نہ ڈیسوں ہوشو شیدی کا نعرہ، ہوشو شیدی کی للکار سندھ کو شکست سے کیوں نہیں بچا سکی۔ میرے پیارے دوستوں اور بہنوں بھائیوں، آپ کی طرف سے جو فیڈ بیک مل رہا ہے اس پر میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہم اپنے احتساب کے قائل ہیں۔ تاریخ کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم جان سکیں کہ ماضی میں ہم سے کون سی غلطیاں ہوئیں۔ ان غلطیوں سے سیکھ کر ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ انگریزوں نے سندھ پر قبضہ کیسے کیا، آج اس پر بات ہوگی۔ سندھ میں انگریزوں کی آمد 1758 میں شروع ہوئی۔ 1758 عیسوی میں شروع ہوئی۔ کلہوڑا حکمران میاں غلام شاہ کلہوڑے کے دور میں انگریز تاجر سندھ میں آئے۔ انگریزوں نے میاں غلام شاہ کلہوڑے سے ٹھٹہ میں تجارتی چوکی قائم کرنے کی اجازت لی اور یہاں سندھ سے تجارت شروع کی۔ سندھ کے دوسرے کلہوڑا حکمران میاں سرفراز کلہوڑوں نے ٹھٹہ میں انگریزوں کی موجودگی اور ان کی واپاری کوٹھی کی شدید مخالفت کی، جس کے بعد میاں سرفراز کلہوڑوں نے 1775 عیسوی میں انگریزوں کو سندھ سے نکال دیا، ان سے سب مرادیں چھین لیں۔ انگریزوں کی نظریں سندھ کے مالی وسائل پر تھی۔ وہ کسی بھی طریقے سے سندھ کو اپنے زیر تسلط لانا چاہتے تھے۔ آخر کار کلہوڑا دور کے خاتمے کے بعد تالپور دور میں انگریز تاجروں نے 1799 عیسوی میں سندھ کے حکمران میر غلام علی تالپور سے اجازت لے کر کراچی اور ٹھٹہ میں ایک بار پھر کاروبار شروع کیا۔ 1809 عیسوی میں انگریزوں نے سندھ کے تالپور حکمران میر غلام علی کے ساتھ اپنے نمائندوں سنتھ اور پوٹنجر کے ذریعے ایک معاہدہ کیا، جس میں میر کی حکومت کو تالپوروں کی حکومت کو بیرونی حملے سے بچانے میں مدد کرنے کا معاہدہ کیا گیا۔ انگریزوں نے اس معاہدے کے تحت کچھ سہولیات اور رعایتیں حاصل کی۔ اس معاہدے کے تحت سندھ میں میر اور انگریز ایک دوسرے کی دربار میں اپنے نمائندے مقرر کریں گے اور فرانسیسیوں کو سندھ میں آنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اس طرح انگریزوں نے سندھ میں اپنے پاؤں مضبوطی سے جمانا شروع کر دیے اور میروں کو کسی نہ کسی بہانے سے معاہدوں میں جکڑتے گئے۔ 1831 عیسوی میں تالپور حکمران میر مراد علی نے اپنے انگریز معالج برٹش معالج ڈاکٹر برنس کے بھائی الیگزینڈر برنس کو دریائے سندھ کے راستے سفر کرنے کی اجازت دی، جو دراصل انگریزوں کا سندھ کو فتح کرنے کا باقاعدہ منصوبہ بندی کا حصہ تھا۔ وہ دریائے سندھ دیکھنا چاہتے تھے، اس میں دریائے سندھ کے ذریعے سندھ کے دوسرے حصوں میں پہنچنے کا جائزہ لینا چاہتے تھے۔ 1832 میں ایک معاہدے کے ذریعے میروں نے انگریزوں کو سندھ میں تجارتی سرگرمیاں جاری رکھنے کی اجازت دی۔ ایک بار پھر 1838 میں تالپور حکمرانوں نے انگریزوں کو دریائے سندھ کے راستے اپنی فوجیں افغانستان بھیجنے اور شکارپور میں چھاونی قائم کرنے کی اجازت دی، یعنی شکارپور میں برٹش فوج کو تعینات کرنے کی اجازت دی۔
टालपुर हुक्मरानों से मुआहदे के बाद बरतानवी फौजी जहाज समंदर के रास्ते कराची के बंदरगाह पहुंचे, मनोरे पहुंचे और उन्होंने मकामी हुक्मरानों के सामने अपनी ताकत का मुजाहरा करने के लिए कराची के बंदरगाह पर तोपों से गोलाबारी की, गोले दागे, जिस पर तालपुर हुक्मरानों ने अंग्रेजों के इस अमल पर सख्त नाराजगी जाहिर की और इस अमल को मुआहदे की खिलाफ वर्जी करार देते हुए इसके खिलाफ अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया। लेकिन ताकतवर के सामने ये एहतजाज कोई माना नहीं रखता था। अंग्रेजों ने तालपुर हुक्मरानों के एहतजाज का कोई नोटिस नहीं लिया। 1842 ईस्वी में सर चार्ल्स नेपियर को अंग्रेजों ने सिंध के लिए रेजिडेंट मुकर्रर किया, जिसने टालपुर हुक्मरानों पर दबाव डाला कि वो कराची, ठट्टा, सखर, बखर और रोहड़ी को हमेशा के लिए अंग्रेजों के हवाले करने के मुआहदे पर दस्तखत कर दें, यानी वो इलाके अंग्रेजों को दे दें बिना किसी जंग के। मीरों ने ऐसा करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद नेपियर ने फौरन टालपुर हुक्मरानों के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। अंग्रेज फौज ने थर में जाकर इमामगढ़ में मीरों के किले पर हमला करके उसे तबाह कर दिया, जिसके बाद अंग्रेज फौज ने हैदराबाद की तरफ पेशकदमी शुरू कर दी, यानी ये सिंध पर कब्जे की शुरुआत थी। टालपुर हुक्मरानों ने भी अंग्रेजों से मुकाबले की तैयारी शुरू कर दी और 13 फरवरी को हैदराबाद में अंग्रेज रेजिडेंट की रहायशगाह को हमला करके तबाह कर दिया। वहां मुकीम अंग्रेज ऑफिसर ओटराम और उसके लोगों को भगा दिया। इसके बाद टालपुर हुक्मरानों ने तकरीबन 30,000 अफराद का लश्कर तैयार किया और हैदराबाद के करीब म्यानी के मैदान में जंग के लिए तैयार हो गए। 17 फरवरी 1843 को चार्ल्स नेपियर भी हाला के रास्ते से तकरीबन 2500 अंग्रेज सिपाहियों का लश्कर लेकर तोपों और बमों के साथ म्यानी के मैदान में जा पहुंचा। जबकि सिंध की फौज ब्रिटिश फौज के मुकाबले में रवायती हथियारों से लैस थी, टालपुर फौज ने दुश्मन की फौज को ललकार दिया। ढोल की थाप के साथ मकामी फौज की तलवारें भी बज उठी। अंग्रेजों के तोपों और बमों ने म्यानी के मैदान को लहूलुहान करना शुरू कर दिया। अंग्रेजों के जदीद हथियारों ने तकरीबन 5000 देसी फौजों की जान ले ली। इस तरह अंग्रेजों के सिंध पर कब्जे की राह हमवार हो गई। म्यानी की जंग जीतने के बाद अंग्रेजों ने आकर हैदराबाद के किले पर कब्जा कर लिया और वहां लूटमार शुरू कर दी। हैदराबाद पर कब्जे के बाद चार्ल्स नेपियर ने तालपुर हुक्मरानों को गिरफ्तार करके मुंबई भेज दिया। इसी दौरान सिंध की फौज फिर से मुनज़्ज़म हुई। मीरपुर खास के मीर शेर मोहम्मद तालपुर के क़ियादत में फौज अंग्रेजों से हैदराबाद का कब्जा छुड़ाने के लिए आगे बढ़ी, जिसके बाद चार्ल्स नेपियर अपनी फौज के साथ 24 मार्च को दुबे की इलाके में पहुंच गया। दुबे पहली जंग म्यानी में हुई थी, ये अब दूसरी जंग दुबे में होने जा रही थी। 24 मार्च 1843 को दुबे के मैदान पर दोनों लश्करों में फिर से तसादम हुआ। यहां भी सिंध की हिफाजत के लिए लड़ने वाले जवानों के सर गिरते रहे, खून की नदियां बहने लगी, लेकिन सिंध शिकस्त से नहीं बच सकी। अंग्रेजी फौज के सिपहसालार सर चार्ल्स नेपियर ने
तमाम सिंध पर कब्जा कर लिया और सिंध पर ब्रिटिश हुकूमत का आगाज हुआ। अंग्रेजों के हाथों सिंध की शिकस्त की वजूहात क्या थी? आज हम इस पर बात करेंगे कि शिकस्त की वजूहात क्या थी। अफगानिस्तान में जंग हारने के बाद, असल में अफगानिस्तान में जंग हारने के बाद हैदराबाद और मीरपुर खास के मीरों के साथ, टालपुरों के साथ अंग्रेजों के ताल्लुकात खराब हो चुके थे, लेकिन खैरपुर रियासत के टालपुर हुकूमत अंग्रेजों की हामी थी। इस तरह अंग्रेजों ने टालपुर हुक्मरानों के आपस में इख्तलाफात का फायदा उठाकर सिंध पर कब्जा करने का मंसूबा बनाया। मीर सफ्तार खान और मीर मोहम्मद खान हैदराबाद के टालपुर हुक्मरानों से सियासी इख्तलाफात की वजह से म्यानी के जंग में शामिल नहीं हुए, लेकिन जनरल होशोशीदी ने मीर सफ्तार खान के मना करने के बावजूद म्यानी और बाद में दुबे में अंग्रेज फौजियों के खिलाफ बहादुरी से जंग लड़ी और अपनी जान कुर्बान कर दी। दूसरी तरफ रियासत खैरपुर के मीर अली मुराद टालपुर ने हैदराबाद और मीरपुर खास के मीरों के खिलाफ अंग्रेजों की मदद की और अपने वतन से गद्दारी की। 1843 में अंग्रेजों ने सिंध फतह करने के बाद खैरपुर रियासत मीर अली मुराद टालपुर को अपने वतन से गद्दारी करने के बदले इनाम में दे दी। खैरपुर रियासत अंग्रेजों के साए तले तकसीम हिंद तक टालपुर की रियासत रही। खैरपुर रियासत को पाकिस्तान बनने के बाद, वन्युट के क़याम के बाद ख़त्म करके दोबारा सिंध में ज़िम्न कर दिया गया। अंग्रेजों ने जब बरसगीर के मुख्तलिफ रियासतों पर कब्जा करने के बाद सिंध की तरफ पेशकदमी की, तो सिंध पर कब्जा करते हुए उन्हें किसी किस्म की सख्त मज़ाहमत का सामना नहीं करना पड़ा। हमें एतराफ़ करना चाहिए कि अंग्रेजों ने जब बरसगीर के मुख्तलिफ रियासतों पर कब्जा करने के बाद सिंध के तरफ पेशकदमी की, तो सिंध पर कब्जा करते हुए उन्हें किसी किस्म की सख्त मज़ाहमत का सामना नहीं करना पड़ा। सिंध के लोगों ने इनफरादी बहादुरी तो दिखाई, लेकिन इज्तिमाई तौर पर अंग्रेजों से लड़ने में कोई किरदार अदा नहीं किया। इसकी वजह यह थी कि टालपुरों के दौरे हुकूमत में सिंध एक मुल्क के तौर पर मुत्तहद नहीं थी, बल्कि 3 रियासतों में तकसीम कर दी गई थी। इन तीनों रियासतों यानी खैरपुर, हैदराबाद और मीरपुर खास का आपस में इत्तेहाद नहीं था। हुक्मरानों के गुरूही मुफादात की वजह से सिंध इंतशार का शिकार था। एक तरफ रियासत खैरपुर का हुक्मरान अंग्रेजों का हामी था, तो दूसरे तरफ हैदराबाद और मीरपुर खास के हुक्मरानों में भी कोई इत्तेहाद और इत्तेफाक मौजूद नहीं था। वो मिलकर अंग्रेजों की पेशकदमी का मुकाबला नहीं कर सके। लिहाजा अंग्रेजों ने टालपुर हुक्मरानों के दरमियान इख्तलाफात का फ़ायदा उठाया और सिंध पर आसानी से कब्जा कर लिया। सिंध की शिकस्त से यह भी साबित हुआ कि जंग के लिए फ़कत जज्बा काफ़ी नहीं, जदीद हथियार और मुनज़्ज़म फ़ौज की भी अशद ज़रूरत होती है। बदकिस्मती से टालपुर हुक्मरान के पास न तो मुनज़्ज़म फ़ौज थी, न ही उनके पास जदीद गोला बारूद और हथियार थे। यही वजह थी कि सिंध को होशोशीदी का मरसूम मरसूम सिंध न डेसू का नारा भी नहीं बचा सका। आपकी बड़ी मेहरबानी।